Welcome students, RPS Public School online classes. Today we gathered here to collect all the knowledge concerning your English grammar. Students, as you know, in the previous classes, what I defined about the previous classes, just we defined in the previous examples, whatever it is in detail, what I just told you in the earlier classes, we were talking about present tense. As you know, present tense, I just told you it is totally related with your timing, at which time your activity is going on. किस समय आपका काम चल रहा है, आप प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, आपका वर्किंग जो वर्ब है, आप जो काम करते हैं क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। मैंने पहले भी बताया था पिछले क्लास में। एंड दैट वर्ब जस्ट डिसाइड इन विच कैटेगरीज यू आर कमिंग, whether it is present, past or future. It is totally related to your activity, means verb. Whatever you do, our duty, work, that is called, comes under the verb. For example, I am just teaching you online class, this is also a verb. You are looking towards me, that's also a verb. So each and everything you are getting through the verb activity. So that's why I am telling so that it is totally related with your activity. That comes under the verb. So you see, as verb, at present tense, I just told you what are the identification of this tense. जिस वर्ड के अंत में जैसे ता ते ती होता है, उसको प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में डालते हैं। जैसे हमने कहा था ता ते ती, कैसे वह स्कूल जाता है, इसमें ता लगा तो ये आ गया प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी। और मैंने ये भी बताया उस प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में कि उसका भी एक चार कैटेगराइजेशन हुआ था। चार, there are 4 types of present tense: present indefinite, present perfect, present continuous and present perfect continuous. That was already told you. ये चार कैटेगरीज में इस प्रेजेंट टेंस में हमने क्या बताया था, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, just you see simple present, ये सिंपल प्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कहा था कि सिंपल प्रेजेंट में इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट का जिस वर्ड के आंसर काटे थी, जैसे वह स्कूल जाता है, ठीक है। हमने बताया था पिछले क्लास में कि he goes to school, और अगर हम लिखते हैं वे स्कूल जाते हैं, what will we say? They go to school. तो हम यहां देख रहे हैं वर्ब में यहां गो लगा है, यहां गोस लगा है। Why this so happened? Due to person, first person, second person, third person, जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था। आप पर्सन को कैटेगराइज कर लेंगे तो फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर नंबर में, और उसका प्लूरल क्या होता है, बी, जैसा हमने पहले क्लास में बताया था, उसको अभी बताने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं उसको। उसके बाद ये जो सिंपल सेंटेंस है
अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। नेगेटिव में उस समय हमने एफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस या किसी भी सेंस में हम उसको हमने बताया था। आप सिंपल सेंटेंस को यानी एक उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैंने बताया। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हाउ इट कम्स नाउ। नेगेटिव सेंटेंस में होता है जैसे वह स्कूल जाता है, तब यहां क्या बोलेंगे, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता है। तब हम क्या लिखेंगे, he does not go to school। ठीक है, लिखेंगे he does not go to school। और हम लिखेंगे वे स्कूल नहीं जाते हैं। They do not go to। ठीक है, so how this happened? So because you are just looking negative sentence, and this negative sentence, what you say, he does not, you can write this one in short form, doesn't। Doesn't। Here you can write one don't, like this। This also refers to do not। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्पोकन में चाहे रिटन में, हमें ये अच्छा लगेगा ज्यादा कि हम doesn't बोले। हाँ, doesn't, इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, he doesn't go to school या does not go to school, he does not go to school। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है आप लोग के सामने, आप पूछेंगे सर यहाँ s लगा, यहाँ s नहीं लगा, why this so happened? So for this reason I would like to say you that before just catching these clues, what are the clues to be there here? You have to write one, you know the person I just told you earlier, first person, second person and third person। okay, first person I, singular number, plural we, second you, third he, she, it and they। ये सारे हमने आपको बताया, पिछले क्लास में मैंने बताया था ये पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम कैटेगराइज करेंगे इसमें किसमें डज नॉट लगेगा, किसमें डू नॉट लगेगा। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ग्रामर में जो भी हो, लिटरेचर में लिख रहे हो या किसी अदर एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वो सारी परिस्थिति में क्या करते हैं, वो ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग को सीबीएसई कैरिकुलम के हिसाब से आपकी ग्रामर्स को बहुत ज्यादा उसको देखा जाता है कि आप ग्रामेटिकली आप गलत तो नहीं है या आपकी स्पेलिंग्स तो गलत नहीं है। तो इस सारे चीज को ओवरकम करने के लिए मैं आपको क्लू इसलिए बता रहा हूं कि आप उसको ध्यान में रखेंगे कि कैसे कहां पर यूज होता है, और इसका आप लोग घर पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने बताया कि ही डज नॉट और डू नॉट क्यों लगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर्सन के लिए ना होगा। पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर यहाँ बताएंगे आई, यू, आई, वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो इसके साथ या इसके साथ जो है, किसके साथ सिर्फ डज नॉट लगेगा, सिर्फ ये वाले, ऐसे शॉर्ट में याद रखेंगे आप, इसके साथ डज नॉट लगेगा और बाकी के साथ डज नॉट कीजिए या डू नॉट कीजिए, डजंट, डज नॉट या डजंट, और बाकी जितने भी हैं इन सभी के साथ डू नॉट लगेगा। तो इन शॉर्टली
How can you write one? Oh shit. शॉर्टली आप लिख सकते हैं ऐसे आपने बहुत कन्वीनियंट वे में याद करने के लिए ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, followed by does not. Then I, you, we, they, plural noun. Followed by do not. ठीक है? ये आपको याद करने का एक टेक्निक है, मैंने बता दिया, ताकि यू कुड बी गेट फैमिलियर whenever in the written English you just do the better performance. अब इसका एक स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया कि वह स्कूल नहीं जाता, तो हम क्या लिखें? ठीक है? अब हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि आप सब्जेक्ट देखते हैं, फिर इसके बाद डू या डज नॉट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन, और उसके बाद वर्ब लगाते हैं। वर्ब में V1 फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस do not, does not, plus V1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, isn't it? ठीक है? स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखेंगे कि आपका रहेगा, इसको कोरिलेट कीजिए, यहां पर सब्जेक्ट आपका ही हो गया, फिर इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि डज नॉट लगाना है कि डू नॉट लगाना, या शॉर्ट में हम कॉन्ट्रैक्शन में बताए थे डजंट या डोंट, ओके। एंड नेक्स्ट वन वी हैव टू डिसाइड V1, which one V1, और उसके बाद से हम लास्ट में जो सेंटेंस आ गया, जैसे स्कूल आ गया, वर्ड कोई आ गया, कुछ भी आ गया लास्ट में, दैट विल बी कॉल्ड द ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू गेट फैमिलियर दिस वन, ओके। आफ्टर दिस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, अब हमने क्या जाना? हमने जाना प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, हम अभी चल रहे हैं उसमें, इसमें सिंपल सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा आप जानते हैं क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है।
For this you have to not go in a very teasing manner. आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं बता रहा हूं, उसको आप ओबे करेंगे, आप समझ जाएंगे इसमें कैसे। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस बताया, आप बहुत बड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आप प्रिलिमिनरी स्टेज में आप छोटे छोटे सेंटेंस को अगर बनाकर समझते हैं तो यू विल बी गेट बाय हार्ट एंड वेरी क्विकली यू विल एब्सॉर्ब देम। सो आपको समझना है सिर्फ, यहाँ समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप बनाएंगे। जैसे देखिए मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको हिंदी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको देखिए, क्या वह स्कूल जाता है। एकदम सिंपल सेंटेंस से आप सीखेंगे, क्या वह स्कूल जाता है, या क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। आप क्या लिखेंगे या बोलेंगे, डज ही गो टू स्कूल। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क, इसका आप क्या देख रहे हैं, ही के साथ डज लग जाए यहाँ। लेकिन यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ क्योंकि हमने शुरू में बताया तो ये क्या करते हैं कि ही के साथ यहाँ तो डज तो लगा ही, साथ यहाँ भी लिख देते हैं डज ही गोज, जो कि दैट विल बी टोटली रॉन्ग। ओके, सो दिस शुड बी kept in your mind whenever you solve the questions concerning this hour. So as soon as you look here, you will decide whether does or do will use. अब मान लीजिए यहां लिखते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं। Do they go to school? ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां डू लग गया, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन, जैसा हमने यहां बताया, या पर्सन के हिसाब से डू या डज का आप यूज करेंगे। इसी में एक आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, यहां आप लिखेंगे जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तब क्या बनाएंगे आप, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तब क्या बनाएंगे, हाउ विल यू सॉल्व देम, डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, या यहां डज नॉट को एक साथ आप कैसे लिख सकते हैं, डजंट। ठीक है, डजंट ही गो टू स्कूल। इस फॉर्म में, दिस काइंड ऑफ फॉर्म शुड बी रिटन व्हेनेवर यू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो हम क्या यहां देख रहे हैं, यहां पर हमने डज ही गो टू स्कूल। अगर निगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव में निगेटिव, देन यू विल राइट नाउ डज ही नॉट गो टू स्कूल, एंड व्हाई दिस डज इज यूज्ड एंड व्हाई डू यूज्ड, आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर दिस वन। You have to decide which persons come under the category this subject. आपका सब्जेक्ट किस कैटेगरी में आ रहा है, उसको आप लोग यहाँ देखेंगे अच्छी तरह से। गुड, यानी कि डू या डस कैसे देना है, इसका डिसीजन आपको
पर्सन को देख के करना होगा। और हमने ट्रिक भी बताया कि कैसे शॉर्ट में आप याद रखेंगे, किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। अब आप यहां पर आएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाइए, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर में आएगा आपका डू और डज, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ठीक है। और जब यहां हम करेंगे तब क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में डू डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन। You see, this kind of a structure should be written. Why this structure should be kept in your mind? As in mathematics, whenever you solve any questions, some formulae is very essential for you to keep in your mind for solving the questions. Similarly, sometimes in English grammar there is also some structures there. If you keep keep it in your mind, then you will get the optimum result for this. Okay, so we were talking about the interrogative sentence, then we shall talk about the WH questions. WH questions, what does it mean? We shall just explain it. Okay, WH questions आखिर है क्या? Just to look here, WH questions, I'm just telling, जैसे हम एक हिंदी में बोलते हैं उसको एक सेंटेंस बनाकर वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। यहां पर क्या जो वर्ड आया इसका सेंस यही आया कि वो क्या खाता है, खाने में क्या है, चावल दाल रोटी क्या खाता है, ये क्वेश्चंस है। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो क्या शब्द कैसे कौन वो सेंटेंस के अंदर में हो, जैसे वो किधर जाता है या हम लोग किधर जाते हैं, ठीक है। ये किधर वर्ड जो आ गया ये सेंटेंस इस सब्जेक्ट के अंदर में है किधर, और जस्ट दिस विल डिसाइड यू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ WH क्वेश्चंस। व्हेनेवर दिस कम्स दिस प्लेस, जैसे वो क्या खाता है और ये क्या अगर वर्ब के पहले आ जाता है तब क्या होता है, वो दैट विल नॉट कम अंडर द WH क्वेश्चंस। WH मींस क्वेश्चंस जस्ट if any answer you write down, this is followed by these words: whom, where, why, what, how. This type of questions come under the category of WH questions.
ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं जैसे हुआ क्या है, इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, कैसे बनेगा। वो क्या इंग्लिश का हो गया, व्हाट डज ही ईट। देखिए कैसे बना, व्हाट डज ही ईट। तो आपने क्या देखा, यहां आपने WH से कंसर्निंग चूंकि आपने स्टार्टिंग दिया था सेंटेंस को, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ WH क्वेश्चंस। तो हम यहां पर क्या लिखे, व्हाट डज ही ईट। अब यहां पर क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, WH क्वेश्चंस प्लस डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे और जब भी सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा। वह क्यों खाता है, जिंदा रहने के लिए, नहीं होगा आपका आंसर। वो क्यों खाता है, जिंदा रहने के लिए, उसको न्यूट्रिशन मिले। जब इंसान को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हाउ विल ही सर्वाइव। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग सो। Why does he eat? Isn't it? Why does he eat? तब यहाँ do और does का प्रयोग जो हमने बताया था आपको, ये आपको यहाँ पर देखते हुए करेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो किस पर्सन में है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब यहाँ पर दे होगा, प्लूरल नाउन होगा तो यह डू लगेगा, जैसा हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में बताया था। तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू प्रोसीड देयर। वन थिंग इज टू बी नोटेड हियर that structure should come as for your convenience. How the structure is going on here? WH questions plus do or does to be used according to your subject plus that is already written here structure. There is no need to be written. So one thing is to be noted also, what is the difference between these two sentences. I am just writing one sentence. You just look here. Some questions, some students ask, what is the difference between this one? वह क्या खाता है, क्या वह खाता है। These are the two sentences written here. वह क्या खाता है, क्या वह खाता है। What is the difference, main difference between the two? If you, how can you identify this category, this type of sentence or this type of sentence? Whenever any sentence asks your questions in yes or no, then you will decide that sentence will come under these categories. Whenever any sentence answer your questions in a detailed manner, what are you eating, which type of dish you are eating now, in a detailed manner, that comes under the category of this type of interrogative sentences.
उसको WH की कैटेगरी में डालते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस का उत्तर अगर हाँ या यस और नो में हो उसको हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डालेंगे, और जिस सेंटेंस का आंसर WH क्वेश्चंस में हो, जैसे कि हम WH क्वेश्चंस के कैटेगरी में उस सेंटेंस को तब डालेंगे जब हमको, जैसे वो क्या खाता है तो हमको डिटेल से बताना पड़ेगा, यस में उसे काम नहीं चलेगा, हमें बताना होगा कि वो क्या खाता है फिर एक्चुअली में, उसके डिश में क्या है, रोटी है, चावल है, सब्जी है, किस तरह का फल है, फ्रूट्स है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी टेकन इन योर माइंड टू जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सेंटेंसेस, बिकॉज सम स्टूडेंट्स always in dilemma that whenever they use this is very exasperating for them, then how could we decide which categories this sentence come? तो इस तरह से हम सेंटेंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में जाना कि प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में जो नंबर 1 कैटेगरी में है, जिसमें हमने उसका सिंपल सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, नेगेटिव सेंटेंस बताया, तो WH क्वेश्चन से रिलेटेड बताया। तो ये सारी चीजों को आप लोग एक अपने घर पे यू विल जस्ट मेक दिस प्रैक्टिस इन द ट्रांसलेशन बुक सो दैट यू कुड मोर बेनिफिशियल फॉर दिस, यू कुड गेट फैमिलियर मोर एंड मोर। आप इससे और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सके और आपको उस पर गेट बाय हर्ट हो सके, कमांड हो सके। व्हेनेवर जस्ट आई टोल्ड यू दैट whether in spoken or written English, if you are there this type of practice, then there will be no problems at all whenever used in science, in SST, whatever it is, all are just written in English manner. And if you are familiar with this grammar well, then there will no need to be ashamed for your performance. आपको अपने परफॉर्मेंस से लज्जित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरह से कमांड किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ही उसके जो नेक्स्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट, वी शैल टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट एंड हाउ विल दे कैटेगराइज देम, दैट विल बी डिस्कस्ड इन ऑनलाइन क्लासेस इन एन एलाबोरेटिव मैनर। टिल देन आई डू होप दैट you just write down, you have written all the materials in your notebook and you will get by heart them. And before closing this one, I would like to suggest you always revise whatever the material, whether in any subject I am just talking about, not particularly English but in other subjects also, you just revise them regularly, periodically. If you revise them, that will not be deleted from your mind, isn't it? So इस चीज को आप लोग याद रखेंगे और for the next class